Welcome to PB 2021 Uncommon Conference. We have chosen the theme Uncommon to reflect who we are. We are a group of uncommon people sharing a common purpose. As a global apostolic church movement, we are united in the mission of declaring the glory and the love of Jesus Christ to the nations. We are committed to live the redemptive life given by Christ through spiritual restoration and economic empowerment. We are a connected apostolic community of churches globally. This is what HSG Global Family is. This is who we are. Hello friends, I want to welcome you to session 3 of Project Barnabas 2021. My name is Hammond and I am from the hosting and investment team here in HSGKL. Well, what amazing sessions we had so far. I just want to tell you one thing. Expect more. Yes, my friends, expect more, because the more you expect, the more you will receive. Well, the world today is going through a tough season, but let us remember that we are not of the world, but we are uncommon people made for extraordinary times. And that is why we should expect more, because we are set apart by Him. And today, please help me type in the chat box, I am expecting more. Thank you. Now let us all do something amazing, and that is pray together all around the world right now. Let us pray together, shall we? Heavenly Father, I just thank you for this time. I thank you, Lord, that we are gathered together to receive more from you. We are expecting more from you, Lord. We want more from you, Lord. Touch us, Lord. Speak to us in a personal way, Lord. Show us your signs, your wonders, Lord. Fill our cup, Lord. We really want to hear from you, Lord. We know, Lord, that you will never leave us empty-handed, Lord. We just thank you, Lord, for the wonderful session ahead, Lord, in advance, Lord. Thank you for touching us. We thank you, Lord, for blessing us indeed, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Before we proceed to the message, here is an amazing testimony by one of our HSGGM family members. Praise the Lord. My name is Rajinder Kaur and I belong to Devigarh, Patiala. My mother's name is Karamjeet Kaur. She got sick on the 12th of April with heavy bleeding and lot of pain. On the 15th of April, we got her ultrasound done, in which her uterus size was swollen and a cyst also visible. Then we showed her to the Rajendra Hospital and the doctors said that the matter is a little serious. Doctors got the biopsy done. The biopsy report came after 22 days and the doctor said she's got cancer. After that, they suggested us to go to Sangrur Hospital. When we went to Sangrur Hospital, there the doctor said, so you bring her for the treatment, and so we took her to the treatment to the hospital. We faced a lot of difficulty in Sangrur Hospital. There a lot of tests were done, but none of the tests were coming clear in the first and the second attempt. Almost every test was done 3-4 times, but nothing was coming clear in the reports, and we were very disappointed. Then we started her treatment, and for 12 and 15 hours we used to sit there, but very disappointed. We did not know what to do, how to do, because we were facing so many difficulties. Then my sister told me about the church in Patiala. Praise the Lord, everyone. I am Rajvinder's sister. When she told me about my mother, she was in a serious condition and her cancer had reached the 3rd stage. The doctor said we can just give her treatment and rest you have to trust your God. Then we spoke to Pastor Sam. Then in his church, every morning 5 to 6 prayer goes on, and we
participated in that prayer, and everyone prayed for my mother. Every brother and sister prayed for my mother by taking her name and praying for her. And I thank God that my mother is completely all right now. We give all the glory to God. We thank Pastor Sam who prayed for us. We thank God. We thank the Legacy Makers Church who prayed for us. All the believers, all the brothers and sisters prayed for us. So once again, we thank you. Praise the Lord. This is my mother, and God, Jesus Christ, has healed her, and we prayed for her continuously. I thank Legacy Makers Church and Pastor Sam who has prayed for my mother, God, Jesus Christ, who has healed my mother, and I give all the glory to God, Jesus Christ. Praise the Lord. Hello again. Our next speaker is Bishop Dr. Ladonna Osborne. She's the daughter of our dear friends, the late Dr. Daisy and Dr. T.L. Osborne, known for their mass evangelism and miracle ministry. They ministered in our conferences and church in the early 1990s. I first met Dr. Ladonna at her mother's homegoing services. She is the president of Osborne Ministry International, which is a global missionary organization that was founded by her parents in 1949. She is the founder and bishop of the International Gospel Fellowship, which oversees 1,000 churches and ministry. Dr. Osborne International and National Ministry schedule includes Mass Miracle Evangelism Festivals, Osborne Gospel Training Seminars, Pastors and Leadership Conferences, Women's and Mission Conferences, plus Bible School and Seminary Lectures. Her life passion is the gospel to the world. Her message is the days of miracles has not passed because Jesus of the Bible is the same yesterday, today, and forever. We know God's Word by Dr. Osborne will enrich and empower you. बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की रात आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। बहुत ही महत्वपूर्ण कन्वेंशन है जहाँ पर इस बात की सेवकाई होती है कि किस तरीके से जिंदगियों को बदला जाता है। बिल्कुल सही समय पर आए हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जहाँ पर भी जैसे भी आप इकट्ठे हो रहे हैं, और अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये वायदा करती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन के बारे में सारी बातें जानता है। वो आपसे बात करना चाहता है। वो चाहता है कि उसके बारे में कई बातें हैं जो आप समझें, और वह इस दुनिया के लिए और अपने लोगों के लिए क्या सोचता है उस बारे में बात करना चाहता है। तो इस अगले सेशन में आपसे मैं बहुत ही जरूरी एक बात करने जा रही हूँ, एक प्रश्न के बारे में, और वास्तव में मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको दूंगी। बहुत ही अजीब सा प्रश्न है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है, और वो ये है कि यीशु क्यों मनुष्य रूप में धरती पे आया। इस पूरे वार्तालाप में बैठे हुए हैं वही महत्वपूर्ण है कि जब वो धरती पर आए के बाद बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि परमेश्वर मसीह में आया उस नुकसान को उलट देने के लिए अदन के बगीचे में आदम और हव्वा ने की थी, जब उन्होंने परमेश्वर की इंटीग्रिटी पर, ईमानदारी पर शक किया था। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी कि उसका अच्छा था, उससे अपनी पीठ मोड़ ली थी। परमेश्वर के शत्रु के द्वारा वो जो जाल बिछाया गया था उसमें वो जकड़ लिए गए थे। आप उसको डेविल बुला सकते हैं, आप जिस भी नाम में चाहें उसको बुला सकते हैं। एक दुष्ट शक्ति है जो हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध काम करती है। परमेश्वर भला है, शत्रु बुरा है। हर एक अच्छी चीज परमेश्वर की ओर से आती है, हर एक बुरी चीज दुष्ट की ओर से आती है। यह एक महत्वपूर्ण सच्चाई है कि जब हम यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं तो हमें इस बात को समझना है। परमेश्वर ने ऐसा क्या किया कि जो नुकसान पहुंचाया गया था उसको उलट देने के लिए। ये नुकसान सारे संसार के लिए था, सारी मनुष्य जाति के लिए था, और आज हम उसका नतीजा देखते हैं सारे संसार में मनुष्य जाति के बीच में है। प्रश्न ये है, यीशु मसीह मानव रूप में क्यों आया? बाइबल में से कुछ आयतों को दिखाना चाहूंगी जो ये बताएंगे कि वह मनुष्य रूप में आए, पर हम ये देखेंगे जब वो आया वो एक बच्चे के रूप में आया और वो बड़ा हुआ, और जब वो बड़ा हुआ
तो वो परमेश्वर भी था, मनुष्य भी था। उसने करीब 30 साल की उम्र में अपनी सेवकाई शुरू करी। उसके बाद 3 साल बहुत ही असरदार सेवकाई करी और करीब 33 साल की उम्र में उनके जीवन का अंत हो गया। हम उसके बारे में बात करेंगे। पर यह सब उनके साथ तब किया गया जब वो मानव शरीर में थे। वो क्यों नहीं मानव शरीर में बड़े आदमी के रूप में एक दिन इस धरती पर आए? क्यों नहीं उन्होंने दूसरे दिन क्रूस के ऊपर जान दी? और क्यों नहीं वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे? क्यों ऐसा हुआ? और वो जो कुछ हासिल करना था उसे कर सके, क्यों ऐसा हुआ? तो वो हमारे बीच में 33 साल तक जिए। इसी के विषय में आज हम बात करेंगे। अब इस प्रश्न के उत्तर के बारे में बात करें तो वो हमारे जीवन पर बहुत ही प्रभाव छोड़ेंगे। ये सारे आइडियाज हमारे जीवन के आइडियाज को फ्रेम करेंगे कि यीशु कौन है, क्या हासिल किया और आज हमारे जीवन के साथ उसका क्या जोड़ है। आपसे बात कर रही हूँ। यदि परमेश्वर इस धरती पर आया, जो मनुष्य रूप में आया, जिसको हम यीशु मसीह के रूप में जानते हैं, और अगर वो आपके लिए था तो आपका उससे क्या लेना देना है? उसे सुने, समझे और उसे गले से लगाएं। ऐसा आप यीशु मसीह के नाम में करें। पहली चीज जो मैं चाहती हूँ आप समझे कि मैं 4 सच्चाइयों को आपके सामने रखूंगी। 4 सच्चाइयां मैं आपके साथ बांटने वाली हूँ। ये मसीही विश्वास के 4 आधार हैं। हम वास्तव में इनको वो 4 स्तंभ बोल सकते हैं जिसके ऊपर हमारा विश्वास आधारित है। ये वो 4 बातें हैं जिसे हमें जानना है, हमें समझना है, हमें विश्वास करना है ताकि वो हमारे मसीही जीवन पर प्रभाव डाल सके। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी कुलुस्सियों की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 6 से लेकर 10 आयत तक। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। ये कितना खूबसूरत है। ये हमें यीशु मसीह के बारे में बताता है और हमें सचेत करता है हम किस तरीके से गलत शिक्षा के प्रति सचेत रहें और हमें किस तरीके से अपने आप को मसीह में संपूर्ण होते हुए देखना है। ये विचार कि मसीह हम में है, हम मसीह में है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के जीवन में जो हम जी रहे हैं उसके लिए। इससे कुछ लोग जो इसको सुन रहे हैं, शायद आप बाइबल टीचर्स हैं, शायद आप पासवान हैं, आपको सब कुछ मालूम होगा। शायद मैं जो कुछ भी आपको बता रही हूँ उसमें कुछ नया नहीं है। मैं सिर्फ उस बात को जो आप जानते हैं उसको एक अलग नजरिए से आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को और भी गहराई से जानेंगे और ऐसा करने से हम उस अद्भुत रिश्ते को जो हमारे पिता परमेश्वर के साथ है उसको और भी समझेंगे। में से जिन्होंने ये एक व्यक्तिगत फैसला नहीं किया है कि आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, उसको इजाजत दे कि वो आपकी जिंदगी और आपकी जिंदगी से जुड़े सारी परेशानियों को अपने ऊपर ले ले और आप एक समर्पण बनाते हैं जहाँ पर आप परमेश्वर से कहते हैं कि आपके जीवन के द्वारा वो आप में जिए, तो ये वो समय है कि आप फैसला करें। अगर आपने ये फैसला नहीं किया है तो ये सही समय है। तब आप समझेंगे कि मैंने इतनी तैयारी करके आई हूँ ताकि ये संदेश मैं आप तक पहुँचा सकूं, ताकि आप ये जानेंगे क्यों आपके अंदर बदलाव और शांति और नए जीवन के बारे में आना जरूरी है। जब हम प्रभु यीशु मसीह का मानव शरीर में आने के बारे में देखते हैं तो सबसे पहली बात जो मैं चाहती हूँ आप जाने वो यह था कि वो हमें परमेश्वर को दिखा सके। क्यों ऐसी जरूरत थी कि कोई हमें परमेश्वर को
दिखाए। बाइबल के अनुसार जिसका हम विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर का एक वचन है, तो जब हम मत्ती उसके पहले अध्याय में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कई सारे पूर्वजों के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है। नए नियम में तो हम देखते हैं आदम से लेकर नूह तक 10 जनरेशंस के बारे में बताया गया है। अब्राहम से दाऊद तक 14 जनरेशंस था, और दाऊद से बंधुआई तक अब आपने अपनी बाइबल पढ़ी हुई है, आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर किस हिस्से के बारे में बात कर रही हूँ। भी 14 जनरेशंस लग गए, और बंधुआई से मसीह के समय तक 14 और भी जनरेशंस। वो सारा मिलाकर हम देखें तो 62 जनरेशंस थे जो अदन की वाटिका में आदम से शुरू हुए और यीशु मसीह के आने तक थे। आखिरी आदम भी कहा गया है। तो इन 62 सालों में सारे समाज का विकास हो चुका था, कई देशों का भी विकास हो चुका था, सारे धर्मों का भी विकास हो चुका था। मनुष्य जाति किस प्रकार से परमेश्वर तक पहुंच सकती है, इस सारी बातों का आइडिया इंसान के दिमाग में आ चुका था। वो सब इन सारे 62 जनरेशंस के बीच में हो चुका था। तो बाइबल कहती है कि इस दौरान हमारी खुद की सोच दुष्टता में बदल गई थी, और हम ये भूल चुके थे कि परमेश्वर वास्तव में कौन है। यहाँ तक कि जो मसीह के समय में यहूदी लोग थे, का विचार कि असल में सृष्टिकर्ता कौन है, उनके दिमागों में बहुत उल्टे सीधे विचार सृष्टिकर्ता के बारे में आ रहे थे। उस समय से उनके मन में थे, जब वो इजरायली थे, उन्होंने अपने दिलों को कठोर कर लिया। अब सिर्फ उनके नियम कानूनों और रिचुअल्स पर रह गया था। वे उस प्राथमिकता को भूल गए थे जो परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ हमेशा अपने लोगों को देता है। परमेश्वर उनके साथ है, उनके साथ हमेशा रहेगा, और वे लोग कि इस संसार में परमेश्वर को प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इन वचनों की ओर ध्यान दें जो इब्रानियों उसका पहला अध्याय 1 से 3 आयत तक है। बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करें। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र जो यीशु मसीह है के द्वारा बात की, जिसे उसने सारी वस्तुओं पर वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वाक्य पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। तो यीशु मसीह आया ताकि उस परमेश्वर को जो दिखता नहीं है उसके लिए अपना चेहरा प्रस्तुत कर सके। भी हमें परमेश्वर के बारे में जानना है, हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं। जब भी हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या महसूस करता है, हम यीशु मसीह की ओर देखते हैं। तो हमें परमेश्वर को दिखाने आया था। मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर आयतें पढ़ना चाहती हूँ जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय 1 से 4 तक है। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। फिर सारी आयतों को छोड़कर हम 14वें आयत में जाते हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। बहुत ही सुंदर आयत है। तो देखिए पहले आयत में कहा क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के चेहरे पर एक चेहरा दिया जो उसका अपना चेहरा था। परमेश्वर की इमेज को उसने एक चेहरा दिया, और वह सृष्टिकर्ता जो शुरुआत में वचन था, और वही वचन देहधारी हुआ, हम में आकर वास किया। मैं आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में ले चलती हूँ। मैं 6वें आयत से शुरू करती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर फिलिपुस जो यीशु मसीह का एक चेला था, उसके बीच में और यीशु मसीह के बीच में बातचीत चल रही है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास
विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। हम इसके बारे में पहले भी बातचीत कर चुके हैं। यहाँ पर यीशु मसीह साफ साफ कह रहा है कि वो कौन है। फिलिप इस बात को समझ नहीं पाता है। वो यीशु से कह रहा है हमें पिता को दिखा। यही वो तरीका है जैसे हम परमेश्वर के वचन में अक्सर उसको इसी तरीके से हमारी प्रतिक्रिया होती है। को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है पर हमारे भेजे में ये बात नहीं घुसती है और इसीलिए हम उसे समझने में इनकार कर देते हैं। परंतु यीशु मसीह चाहता है कि हमें इस बात का बड़ा दर्शन हो, इसीलिए वो इस बात को साफ साफ कहता है कि वो आया, इस सामने खड़ा है, आपको देख रहा है और अब आप परमेश्वर को जानते हैं। जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर वास्तव में कैसा होगा तो हम यीशु मसीह की ओर देखें। वो पापों को क्षमा करता है, वो बीमारियों को चंगा करता है, जो ठुकराए हुए हैं उनके लिए उसके दिल में दया है, उसकी सामर्थ हर एक आत्मा और हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर है। तो आजकल लोग क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचती हूँ कि लोगों को उस परमेश्वर के बारे में बताया जाए जिसने इस सृष्टि की रचना की है। हम उनसे ये कह रहे हैं कि परमेश्वर उनसे नाराज रहता है। क्या हम उनसे ये कह रहे हैं कि उनको एक परफेक्ट जीवन जीना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर उनकी मदद के लिए नहीं आएगा? यीशु मसीह के द्वारा जिस परमेश्वर को दिखाया गया है वो ये परमेश्वर नहीं है। क्या हम लोगों को ये बता रहे हैं कि कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में इसलिए बीमारियां लेकर आता है ताकि हम उनको सजा दे सके? उनको ये बता रहे हैं कि उनका जीवन ऐसा है कि जहाँ पर उनको बीमारियां उनके जीवन में आए ऐसा होना चाहिए? क्या यही सारी बातें हम उनको बता रहे हैं? ओ मैं प्रार्थना करती हूँ, नहीं, ऐसी बातें हमें नहीं बतानी चाहिए। हम उसी परमेश्वर को लोगों के सामने लेकर आए जो यीशु मसीह ने जिस परमेश्वर को लेकर आया। यही हमारा काम है और यही हमारी सेवकाई है कि हम परमेश्वर को उसी चेहरे के साथ लोगों के सामने लेकर आए जिस चेहरे के साथ यीशु मसीह ने परमेश्वर को संसार के सामने प्रस्तुत किया था। अब मैं वो दूसरी वजह आपके सामने लेकर आने वाली हूँ जिसके कारण यीशु मसीह देहधारी हुआ। पहला कारण ये था कि वह प्रस्तुत कर रहा था परमेश्वर को संसार में। इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं कैसे उस परमेश्वर पर विश्वास करूं जिसे मैंने देखा नहीं, हमने परमेश्वर को देखा है। दूसरा कारण कि यीशु मसीह देहधारी इसलिए हुआ कि वो हमारे पापों को अपने ऊपर उठा ले ताकि हमें जो सजा मिलनी थी वो उसको मिले। मैं यशायाह नबी की पुस्तक में से 53 अध्याय का 4 से पढ़ती हूँ। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। इन आयतों में जो तस्वीर हम वो देख रहे हैं वो यह है कि परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। उसने कुछ गलत नहीं किया था पर हम गिल्टी थे, हमें सजा मिलनी चाहिए थी। हम थे जो पापी थे, हम थे जिन्होंने धोखा दिया, हम थे जिन्होंने अपनी पीठ उसकी तरफ मोड़ ली, हम थे जिसके दिमाग को दुष्ट ने गंदा करके रख दिया था। पर वो सारे पाप जो हमने किए थे, वो सारे गलत काम जो हमने किए थे, उन सब को उठा के मसीह के ऊपर डाल दिया गया था ताकि वो हमारे बदले में एक दाम चुका सके। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 29वें आयत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था, यीशु मसीह उसकी तरफ आ रहा था। आपको पता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह का कजन था, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। पर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को देखा, देखो परमेश्वर का मेमना आ रहा है जो संसार के सारे दुखों को अपने ऊपर ले लेता है। बिल्कुल सही वाक्य कहा था उसने। ये ऐसा वाक्य था जो भविष्यवाणी के रूप में उसने कहा था, जो कहा था कोई भी आम यहूदी के दिमाग में वो बात आती ही नहीं
बलिदान के बारे में मालूम था, पर कौन से बलिदान? बकरियों के बलिदान, जानवरों के बलिदान, ऐसे बलिदान जो कभी भी उनके पापों को उनके ऊपर से ले नहीं सकते थे। परंतु ये कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से हमें धोकर शुद्ध करता है। ऐसा पहले कभी नहीं किया गया था और इस प्रकार का विचार किसी के मन में आया भी नहीं था। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने जब हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया था, वो संपूर्ण बात थी हमारे लिए। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके 24वें आयत में क्या लिखा है उसे सुने, और उसके बाद मैं 3 अध्याय वे आयत में जाऊंगी। आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। कितना सुंदर बदलाव है। पहले हम पापी थे, पर अब हम पाप से मुक्त हो चुके हैं। सिर्फ परमेश्वर ही ऐसे चमत्कार को हमारे जीवन में कर सकता है। अध्याय 3 के 18वें आयत में जाते हैं कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाया जा सके। मैं चाहती हूँ आप इस आयत को ध्यान से देखें कि यीशु मसीह सिर्फ एक बार मरा और उसे जो बलिदान किया वो काफी था। क्रूस पर दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी पाप आप जो करते हैं वो इतना बुरा नहीं है कि यीशु मसीह का लहू उसको कवर ना कर सके। विश्वास करें, वही धर्मी है। इसने अधर्मियों के लिए दुख सहा। अब हम परमेश्वर के और भी करीब लाए जा सकते हैं। मत्ती उसके 26वें अध्याय के 28वें आयत में लिखा। मुझे ये आयत बहुत पसंद है, मैं बहुत पसंद करती हूँ इस आयत को। ये वो समय है जब यीशु मसीह आखिरी दिन अपने चेलों के साथ बांट रहे थे। वहाँ पर उन्होंने ये कहा था, उसने कटोरे को उठाया और कहा, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। पुराना नियम भी था जहाँ पर भेड़ों को, जहाँ पर बकरियों को, जहाँ पर बैलों को बलिदान किया जाता था, पर टेम्पररी तरीके से उनके पापों को ढका जाता था। पर ये नई वाचा है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। उस लहू जिसने कभी भी पाप को नहीं देखा था, वो लहू जो आसमानी लहू था। और एक धर्मी को पापियों के लिए सफर करना पड़ रहा था, दुख उठाना पड़ रहा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि अलग अलग अनुवाद है और वो अलग अलग तरीके से इस बात को प्रस्तुत करते हैं। जहाँ पर ओल्ड इंग्लिश बाइबल में पापों के लिए जो पाप किए गए हैं उसके लिए सुधार एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर यह शब्द कि सुधार लाया जाए क्षमा करने से भी ज्यादा शक्तिशाली शब्द है। परंतु एक और शब्द है जो रिमिट कहलाता है। रिमिट का मतलब है सजा से छुटकारा दिलाना। इस बात पर विश्वास करें, भी आपके विरुद्ध था उस सब को कैंसल कर दिया गया है। इस बात पर विश्वास करें। वो दिन याद है जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर से एक भार उठा लिया गया है। पर इसको ध्यान से सुने। इसका अर्थ है पहले की स्थिति को दोबारा बचा लेना या वापस लाना। तो आपकी पहले वाली स्थिति क्या है? आप जो परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं, आप जो परमेश्वर की सृष्टि हैं, आप उसके बेटे और बेटियां कहलाए जाएं कि आप उसकी जिंदगी को जो आपके अंदर है उसके साथ जिए, उसको दिखाएं। आप संसार को संसार के सामने प्रस्तुत करें। इस टूटी हुई दुनिया में आप एक उम्मीद की किरण लेकर आए जहाँ पर इतना अंधकार छाया हुआ है, कोई उम्मीद की किरण नहीं है। ओ, ये कितना सुंदर एक बदलाव है। भजन संहिता 103 के 12 आयत में लिखा है, उद्याचल स्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। ये सारी बातें देहधारी होकर करनी थी। हमने पापों को भी देह में ही करा था। आदम हमें प्रस्तुत नहीं कर सकता था, कोई फरिश्ता हमें प्रस्तुत नहीं कर सकता था। इंसान को हमें प्रस्तुत करना था, एक इंसान जो देहधारी है। इंसान जो देहधारी है उसे प्रस्तुत करना था, एक मासूम जिसको बलिदान किया गया, उसका लहू जो कभी भी पाप नहीं किया है, उसके लहू की दरकार थी, जरूरत थी कि हमें हमारे पापों से शुद्ध कर सके। खूबसूरत है। तो सुनिए, अब हम लोगों को क्या जाकर बताएं? तो हम लोगों को उनके पापों के बारे में क्या जाकर बताएं? क्या हम लगातार उनको उनके पापों के बारे में याद दिलाते रहें? उन्होंने अपने पूर्व में
में किए थे उनके बारे में, तो कहे कि परमेश्वर ने सब देखा है और परमेश्वर आपके जीवन से बहुत नाराज है, परमेश्वर आपको माफ नहीं कर सकता है और उसकी माफी के लिए अलग चीजों को आपको करने की जरूरत है को परमेश्वर तक पहुंच सके। इसके लिए हम लोगों को क्या बताएं? मेरे दोस्तों, हमारा जो संदेश लोगों तक पहुंचना है वो वही संदेश होना चाहिए जो यीशु मसीह ने लोगों तक पहुंचाया कि मेरी लहू का ये नया वाचा है, पाप को दोबारा याद ना किया जाए। अब एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सबसे जरूरी ये है कि उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया उस बात को समझना। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुआ ताकि वो परमेश्वर को हमारे सामने प्रस्तुत कर सके, और दूसरा कारण वो देहधारी हुआ ताकि हमारे पापों को वो अपने ऊपर उठा सके, और उसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, सारी सजा को अपने ऊपर ले लिया ताकि हमें क्षमा किया जा सके। अगर वे परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं तो वो परमेश्वर की आज्ञा मान सकते। देखते होंगे कई ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को मुश्किल होता है कि वे परमेश्वर पर विश्वास कर सके, क्योंकि वो सिर्फ एक ऐसा जगह है, एक एरिया है उनके जीवन में जहाँ पे वे विश्वास नहीं कर। जरा आप इसके बारे में सोच कर देखें और जरा ये सोच कर देखें कि ये किस तरीके से आपके जीवन पर लागू हो। जब आदम और हवा ने परमेश्वर पर शक करना शुरू किया, उन्होंने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान पा रहे थे और इसीलिए परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी रहे। परमेश्वर ने दुष्टि के बारे में क्या किया? क्योंकि जब हम उत्पत्ति अध्याय 4 तरफ जाते हैं, उस तक पहुँचते हैं, हम देखते हैं वहाँ पर शैतान ने अपना काम करना शुरू कर दिया। यह पाप का फल है। दुश्मन का हमारे आम जीवनों पर प्रभाव डालना शुरू करना देख लेते हैं। आप केन और हाबिल को ही देखिए, आप देखते हैं कैसे एक भाई दूसरे को मार रहा है, आप देखते हैं ईर्ष्या, आप देखते हैं अपने बारे में सोच, आप देखते हैं किसी को मौत के घाट उतार देना, और आप देखते हैं परेशानियां, आप देखते हैं दर्द, आप देखते हैं निराशा। और जब तक आप अध्याय 4 तक पहुँचते हैं, आप देखते हैं एक ही मनुष्य बहुत सारे विवाह कर रहा है, आप देखते हैं रेप, आप देखते हैं कैसे औरतों के ऊपर आदमियों द्वारा अत्याचार हो रहा। यही है जो दुनिया में आज भी चल रहा है। आप जो कुछ भी आज अपने आसपास देखते हैं, आप ये देखते हैं कि मानवता कितनी गंदी हो गई है, दुष्ट हो गई। जो अत्याचार लोग एक दूसरे के प्रति कर रहे हैं, उसको आप कभी कभी इस बात को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये तो परमेश्वर की योजना में था ही नहीं। इसकी परछाई शैतान के हृदय में है, इसकी परछाई मनुष्य के शत्रु में है। वह जो दुष्ट, वह जो मारने, चोरी करने और नाश करने आता है, और वह जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा कि उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, वो शुरू से ही एक झूठा रहा है। वह जो सबको भ्रष्ट करता है, मानव जाति को। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा उसके बाद जितने लोग पैदा हुए कि हम सब ने पाप किया। वो कौन सा पाप है जो हमने किया है? शुरुआत में नहीं, क्योंकि हम तो पाप के नतीजों में ही पैदा हुए। सोचिए, एक औरत है जिसको किसी क्राइम के लिए, किसी पाप के लिए उसको जेल में डाला जाता है कि वो जेल में ही रहेगी अपने पाप के। और फिर जब वो जेल में जाती है, उस समय वो गर्भवती। अब मुझे पता है कई देश ऐसे हैं जहाँ पर जो बच्चे जेल में पैदा होते हैं उनके लिए अलग अलग नियम कानून है, जहाँ पर गर्भवती माएँ बच्चे को पैदा करें। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ उस सिद्धांत के बारे में। अगर एक औरत पर ये दोष लगाया जाता है कि उसने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण उसको जेल होना चाहिए, और वो गर्भवती है, बच्चा कहाँ पर पैदा होगा? ऑफ कोर्स वो जेल में पैदा होगा। अब वो हमारी स्थिति को समझाता है। हमने कोई पाप नहीं किया, पर हम उसी जेल में पैदा हुए जहाँ पर माँ को रखा, जहाँ पर हमारे उन माता पिता को रखा गया जिन्होंने पाप किया और जिनको उनके पाप के लिए सजा भी दी गई। अब जब बच्चा बड़ा होता है जेल में, उसके दोस्त कौन होंगे? कोर्स बाकी जो जेल के लोग हैं, जो कैदी हैं, वही उसके दोस्त होंगे। कौन? उसके मनोवृत्ति जेलर के प्रति या उस अधिकार के प्रति जो उसको ये कहता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा रहेगा। और वो बच्चे जो जेल में पैदा होते हैं, उनकी मनोवृत्ति कैसी रहेगी, उनको क्या प्राप्त होगा, उनको दूसरे कैदियों से क्या प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हैं हम किस तरीके से इस बात को समझ रहे हैं। हम जैसे ही इस पाप भरी दुनिया में पैदा होते हैं, यही सब कुछ हमारे साथ होता है। ये संसार हमको प्रभावित करता है, और चाहे कुछ भी हमारी परिस्थिति हो, हम एक ऐसी जगह पर आ जाए जहाँ पर हमारे व्यक्तित्व को ऐसे पहचाना गया है जैसे जेल में रहता
हुआ बच्चा। हमें मदद की जरूरत है, हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है। अब परमेश्वर ने इसके लिए क्या किया? यह हमारे उस तीसरे इवेंट की ओर लेकर जाता है जो सुसमाचार में मैं उसको परमेश्वर की जगह लेने वाला इस नाम से तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर जो आयते हैं वो आपको समझा। उत्पत्ति 1 और 2 परमेश्वर की सृष्टि, उत्पत्ति 3 शैतान का धोखा, उत्पत्ति 4 अध्याय से लेकर मलाकी तक पूरा हम देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर ने इंसानों के साथ, मनुष्यों के साथ एक बातचीत रखी और उसके साथ काम करता रहा ताकि उसकी जो मनुष्य जाति और मानवता के लिए एक योजना थी वो पूरी हो सके। हम परमेश्वर को देते हैं, हम देते हैं उसकी महिमा, हम देते हैं उसकी दया, हम देते हैं उसका न्याय, उसका प्यार, उसकी कृपा और उसका उद्देश्य, उसकी इच्छा। और हाँ, आप फिर ये देते हैं कि किस तरीके से मनुष्यों के लिए ये कामयाब रहा, मनुष्यों के लिए ये हो ही नहीं सकता ऐसा रहा। परमेश्वर के बिना मनुष्य वो अपना वायदा नहीं रख सके, इजरायली अपना वायदा नहीं रख सके। वो चाहते थे कि सब कुछ उनके साथ अच्छा हो और वो अच्छा कर नहीं सके। वो हमेशा दुष्ट की तरफ, शैतान की तरफ मुड़ मुड़ के वापस जाते रहे। वो उनकी आदत बन चुकी। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा वफादार रहा और जो मानव जाति, दुष्ट मानव जाति के लिए एक चुनौती। अब हम लोग मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना तरफ, और यहीं पर मैं जिसको बुलाऊं, मैं जिसका नाम लूंगी, परमेश्वर ने हमारी जगह ले ली। उस बात को हम यहाँ पर डिस्कवर करते हैं, हम खोजते हैं। वो आया और वो मनुष्य रूप में आया। उसने आया, वो आया ताकि वह असली इंसानियत को दिखा सके, मानवता को दिखा सके, अपने एक उज्जवल जीवन को, उत्तम जीवन को दिखा सके। वह जीवन जो हम जीते जब हम मसीह में आ जाते, उसको स्वीकार करते और जो हम विश्वास करते हैं उसने पहले से ही, हमारे जन्म से पहले से ही हमारे अंदर डाल दिया। हम ज्यादा से ज्यादा मसीह के समान बन जाते हैं। यही से ये आइडिया, वह हमारे लिए उदाहरण वह है जो अंत तक चलता रहा। हमें पता है ये कहानी जहाँ पर वह उसको दोष दिया गया, उसको धोखा दिया गया। एक ऐसा इंसान जिसने कुछ भी नहीं किया, एक इनोसेंट मासूम इंसान, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, पर ये परमेश्वर की योजना, ये परमेश्वर की योजना थी। आप ये शाया नबी उसका 53 पढ़ेंगे, ये परमेश्वर की योजना थी कि उसको चोट पहुंचाया जाए। तो ये परमेश्वर की योजना थी कि हमारे पापों को उसके ऊपर रख दिया जाए। ये परमेश्वर की योजना थी कि उसके द्वारा उद्धार दिया जाए। ये परमेश्वर की योजना थी कि हमें एक मौका दिया जाए कि हम एक नया जीवन जीने के लिए दोबारा बचाए जा सके। ये परमेश्वर की योजना। जब तक रोमियो ने सोचा कि वो जीत रहे हैं, उनका जो धार्मिक शासक थे, जो दुष्ट थे, उनको जीत प्राप्त हो रही है, और हाँ, शैतान को भी ऐसा लगा कि वो बहुत खुश हो रहा है। और उसी समय परमेश्वर वो हमें एक ऐसा एकदम परफेक्ट बलिदान दे रहा था जो इस पूरी दुनिया के लिए बलिदान होगा, ताकि हम लोगों को निर्दोष साबित किया जा सके, ताकि हमको मासूम साबित किया जा सके। उसे दोष दिया गया ताकि हम मासूम बने, उसे दोष दिया गया ताकि हम साफ रह सके, उसके ऊपर पापों को लादा गया ताकि हम धर्मी बन सके। वो हमारी जगह, इसीलिए मैं इसको परमेश्वर हमारी जगह लेता है करके इस बात को बुलाती हूँ। हर चीज जो उसने की वो इसलिए की ताकि हमें ना करनी पड़े। वो मरा और मृत्यु को प्राप्त किया, उसने हमारी सजा को सफर किया, उसने हमारे उस जेल में जो हमें काटना चाहिए था समय, उसने वो एक तरीके से मैं कहती हूँ कि स्वयं बाप बन गया। एक जेलर, मान लीजिए, मैं कहती हूँ एक जेलर कभी कभी उस औरत के पास आता है, मान लीजिए, और कहता है कि मैं तुम्हारे सारे गुनाहों का दाम चुका दूंगा, तुमने जो कुछ भी पाप किया उसका दाम चुका दूंगा, इसको जाने, तुम जाओ। उस जेल के खाने में जाकर कहता है, सुनो, तुम्हारा सारा दाम चुका दिया गया, जो कुछ भी तुमने किया है, अब तुम जाओ। क्या वो जाएगी? मुझे उम्मीद है वो जाएगी। सब नहीं जाते हैं। वो कह सके नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम मुझे सच्चाई नहीं बता रहे हो, जेलर कैसे मेरा दाम चुका सकता है? या वो अपने बच्चे को पकड़कर वहाँ से कहेगी, हाँ, अगर उसने मेरा दाम चुकाया है ठीक है, और वो उस दरवाजे से भागकर बाहर निकल जाए क्योंकि किसी ने उसका दाम चुकाया। ओ मेरे दोस्तों, ये सारे जो संदेश वहाँ है, जो लोगों तक जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा दाम चुका दिया गया, अब तुम आजाद हो, अब तुम जाओ, इस जेल के खाने से निकल जाओ, और तुम्हें अब सिर्फ एक परमेश्वर को स्वीकार करने के द्वारा ये करना है, तुम्हें विश्वास करना, ये संदेश तुम्हारा है। जो इतने भी पाप हमने किए हैं वो इतने बुरे थे, कोई भी यीशु मसीह के अलावा उसको कवर नहीं कर सकता। हमको अपने आप उस क्रूस के ऊपर, क्रूस से जब उसे मारा गया, हमें मारा जा रहा, जब उसके ऊपर कोड़े बरसाए गए, हमारे ऊपर बरसाए गए, जब उसके जख्म चंगे हो रहे थे, वो एक तरीके से हमारे जख्म चंगे हो रहे थे, जब वो खून बह रहा था और सारा खून जो उसने अपना डाल दिया था हमारे लिए, क्यों? हमारे पाप के लिए। इस
इफिसियों की पत्री में उसका 7वां आयत कहता है कि जो लहू के द्वारा हमें उद्धार मिला है वो हमारे पापों क्षमा छुटकारा वो शब्द है जिसने हमें यीशु मसीह ने हमारे लिए दाम देकर हमें वापस खरीद लिया है, ताकि शैतान का हमारे ऊपर कोई कंट्रोल ना, ताकि वो हमारे ऊपर कोई अधिकार ना जता सके। यीशु मसीह ने पूरा हमारे पाप के लिए दाम चुकाया, हमें खरीद लिया है अपने लहू से। हमें सिर्फ ये करना है कि हमें पहचानना है कि यीशु मसीह कौन है, उस पर विश्वास करना है और फिर हम आजाद। यही वो संदेश है जो आज हमें दुनिया का परमेश्वर का दोस्त बनना इतना मुश्किल नहीं है। ये बहुत आसान है कि हम दोबारा जी उठे और एक नया जीवन प्राप्त करें। ये मुश्किल नहीं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमें सिर्फ ये करना है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें और जो कुछ उसने हमारे लिए क्रूस पर किया उस पर विश्वास करें और एक फैसला करें कि हम उसके पीछे चलेंगे। आप देखें, आदम और हवा ने फैसला किया था कि वे परमेश्वर पर शक करेंगे और उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे। हमें एक फैसला करना है कि हम वो जो पुराना जीवन है उसे छोड़कर यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें। ये बहुत ही आसान और यही वो शुभ संदेश है जो हमें दुनिया को ले जाना। तो मैं सिर्फ ये उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी को, इस वास्तविकता को आप जितने भी लोगों हो सके जाके सुनाइए ताकि उनके जीवन बच जाए। वह सुसमाचार जो जीवनों को बदलता है। मैंने अपने जीवन को यीशु मसीह को तब दिया था जब मैं 7 साल, मुझे पता है, मैं एक मीटिंग में और मुझे एक दर्शन प्राप्त हुआ जहाँ पर यीशु मसीह एक बड़े से क्रूस के ऊपर टंगे हुए हैं, उनका लहू बह रहा है और मैं एक 7 साल की बेटी होने के नाते मुझे सिर्फ 2 चीजें समझ में आई। सबसे पहली बात कि वो मेरे पापों के लिए क्रूस पर टंगा हुआ है और दूसरी बात कि वो जब क्रूस पर टंगा हुआ है क्योंकि वो मुझे प्यार की, इस बात ने मेरे दिल तोड़ दिया। मैं इतना रोई और उसी समय मैंने अपने पापों की क्षमा मांगी। मैंने कहा, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैं तेरे जीवन को चाह, मैं तेरी माफी को चाह, मैं अपने जीवन को तुझे दे रही आ और मेरे अंदर जी, मैं चाहती हूँ। उस समय से मैंने प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना शुरू किया। हाँ, मेरे पास चुनौतियाँ थी, मैंने गलतियाँ करी, पर उसने कभी मुझे छोड़ा नहीं। वो मेरे प्रति वफादार रहा, वो मेरे साथ बना रहा, उसने मेरे द्वारा अपनी योजनाओं को पूरा किया। एक बार एक आदमी आया हमारे एक इवेंट्स में और उसे जाना जाता था, वो सबसे ज्यादा शराब पीता था, शहर में सबसे ज्यादा सिगरेट पीता था। वो आया, उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और उसी समय नशे के पदार्थों से उसका एडिक्शन था, उसी समय छूट गया। वो अद्भुत तरीके से नया जीवन पाया और फिर उसी शहर में वो सुसमाचार प्रचारक बना और कई कलीसियाओं को बढ़ने में उसने मदद करी। ये इतना सुंदर है, बहुत सुंदर है। पर मैं आपको अब देती हूँ चौथी घटना जो सुसमाचार में हमारे लिए बताया गया है, कुछ ही मिनटों में। मेरे बात ध्यान से सुनिए। हम सब परमेश्वर की सृष्टि है। उत्पत्ति 1 और 2 शैतान का धोखा देना है। उत्पत्ति 3 परमेश्वर का हमारा स्थान लेना है। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। और चौथा और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पॉइंट ये है जो आपको समझना चाहिए, वो ये है कि हमें उद्धार के लिए बुलाया गया है हमारे लिए। आप देखिए कि हम अगर एक सिर्फ क्रूस का संदेश लोगों तक छोड़ते हैं यहाँ, परंतु अगर हम लोगों को सुसमाचार कैसे उनके जीवन में लागू हो सकता है, उनके जीवन को बदल सकता है, आज के दिन नहीं सिखाते हैं तो वो भी एक धार्मिक संदेश होगा। परंतु सुसमाचार सिर्फ एक धार्मिक संदेश नहीं है, वो लोगों के लिए, उनके जीवन के लिए, मसीह की योजना को पूरा करने के लिए एक अच्छी खबर, जहाँ पर शैतान को हराया गया। आप इसके बारे में सोच के देखिए, हमारा उद्धार, हमारी वापसी। यूहन्ना 3:16 जो कि बाइबल की सबसे ज्यादा कॉमन आयत है जिसको याद किया जाता है। हालेलुया। तो अगर हम बात करते हैं हमारे उद्धार पाने के बारे में, हमारे बचाए जाने के बारे में, हमारे अनंत जीवन के बारे में, वो हम अभी इसी समय कर सकते हैं। उसको बात के लिए मत छोड़िए। जिस समय हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं उसी समय अनंत जीवन हमारे अंदर शुरू हो जाता है और वहीं पर हमारा जीवन शुरू हो जाता है जहाँ पर हम संसार को एक गवाही देते हैं परमेश्वर की अच्छाइयों के बारे में। याद रखिए, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसका 37वां आयत, यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई मेरे पास आएगा मैं उन्हें अपने से दूर नहीं करूंगा। सो आज भी यीशु मसीह अपनी बाहें फैलाए हुए उनमें से इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि यीशु मसीह हम आप पर विश्वास करेंगे और उस योजना पर विश्वास करेंगे और आपका जो तोहफा यीशु मसीह के द्वारा है उस पर हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए है। यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 12वां आयत कहता है, अगर एक परमेश्वर का बच्चा उद्धार पाता है, वापस आता है, अपने तरीके से जीवन जीने के लिए नहीं, परंतु जो परमेश्वर ने शुरुआत
आज से आपके लिए एक योजना बनाई है, उस तरीके से जीवन जीने के लिए वो उद्धार पाता है। प्रेरितों के काम 2:31 में कहता है कि जो कोई भी परमेश्वर के नाम को पुकारेगा वो बचाया जाएगा। अगर आपने कभी भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आज आप एक महत्वपूर्ण फैसला करें, एक कि आप यीशु मसीह का पीछा करेंगे और यीशु मसीह को इजाजत देंगे कि वो जो योजना उसने आपके लिए बनाई है उस योजना को दोबारा आपके अंदर डाले, ताकि आप अपनी परिस्थितियों से मुड़ सके, आपको वो साफ कर सके। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वो आपको दोबारा वापस अपनी योजना में ला सके। मेरा सबसे बड़ा बेटा जब वो 16 साल का था, उसका नाम टॉमी है, जो मेरे पिता के नाम पर ही रखा गया था। वो एक शराबी बन गया, मतलब इतना ज्यादा शराबी बन गया कि वो शराब और ड्रग्स भी इंतहा लेने लगा। कुछ भी नहीं किया जा सकता था। वो सिर्फ एक मिशन पे था जहाँ पर वो अपने आप को बर्बाद कर सके। जब वो 16 साल का था, मतलब लगभग वो सोचने समझने की शक हो चुका था। वो अपना नाम भी किसी को बता नहीं सकता था। वो एक सेंटेंस, एक वाक्य भी बोल नहीं सकता था। वो ऐसा था जैसे कुछ लोगों को आप देखते हैं जिनका जीवन बिल्कुल नाश हो गया और फिर उसका परमेश्वर से मुलाकात कैसे। वो एक ट्रिप पे था, एक ड्रग ट्रिप पे। वो चाहता था कि वो एक रिकॉर्ड सेट करे कि वो एक समय में कितना नशा कर सकता है। आप सोच सकते हैं कैसा एक लक्ष्य था। ये एक बताता है किस प्रकार से शैतान लोगों के जीवनों को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। मैंने इस प्रकार के उदाहरण के बारे में कभी भी नहीं सुना। वो अपने आप को बर्बाद कर देना चाह रहा था और शैतान मेरे बेटे को बर्बाद कर देना चाह रहा था। परंतु जब वो अपने आपे में आया जैसे उड़ाऊ पुत्र की तरह, और उसने सिर्फ एक प्रार्थना करी, क्या थी? ठीक है प्रभु यीशु। उसी समय उसका दिमाग अपनी जगह आ गया। उसके अंदर जो ये नशीली पदार्थ लेने का एक एडिक्शन था वो उसी समय टूट गया, वो नया बन गया और उसके अंदर एक चमत्कार हो गया। यही चमत्कार सुसमाचार करता है। देखें, टॉमी को पहले से ही सुसमाचार का पता था, बस वो अपने तरीके अपना रहा था कि अपने तरीके से चल सके, परंतु परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। आज अगर आप देखें तो टॉमी है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं और वो पूरे संसार में घूम कर कई सालों से सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। वो परमेश्वर के चमत्कारों को देख रहे हैं, लोगों को शैतान के चंगुल से छुड़ाते हुए भी देख रहे हैं। ओह, मैं कहती हूँ आप प्रोत्साहित हो जाइए। अगर आपके बच्चे हैं जो परमेश्वर से दूर हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का नशा है, एडिक्शन है, कृपया उम्मीद मत हारिए। प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए। परमेश्वर की पहुँच से कोई भी दूर नहीं है। परमेश्वर को पता है कैसे हमारे बच्चों को वापस लाना है। सो उस पर विश्वास कीजिए और देखिए कि वो आपके लिए क्या कर सकता है। ओह, जो वो उद्धार हमारे अंदर देता है जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, इन सारी सच्चाइयों को जो मैंने लिया है और आपके साथ अब बांटा है, इसको अपने जीवन में लागू करें ताकि आप लोगों तक एक गवाही का कारण बन सके। आपका जो जीवन बदला उसको बताएं। आज आपका दिन है ताकि आप विश्वास कर सकें, ये आपके लिए है और आप भी उसी शांति और एक जयवंत के जीवन के अंदर आप चल सकते हैं जो आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की योजना को पूरा करा है। इफिसियों में उसके दूसरे अध्याय में जहाँ पर आयत 1 है, वो कहता है उसने आपको जिंदा कर दिया। तुम जो पाप में मरे हुए थे, ओ हाँ, उसने आपको जिंदा कर दिया जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं। मैं मरी हुई थी पर अब मैं जिंदा, पुत्र ने अपने राज्य में लाने के लिए मेरे अंदर शांति है जो मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली है और ये सब उपलब्ध है आपके लिए यीशु मसीह के द्वारा। याद रखिए ये आयत जहाँ पर हम पढ़ते, जहाँ पौलुस लिखता है, मैं यीशु मसीह के सुसमाचार से शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि वह वो सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ है, जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। पहले यहूदी के लिए और फिर यूनानी के लिए, क्योंकि इसी सुसमाचार में वो सारी सच्चाइयाँ हैं जो मैंने अभी अभी आपके साथ बांटी हैं। परमेश्वर की अच्छाई जो विश्वास से विश्वास के द्वारा जाहिर होती जा रही है। वचन कहता है कि जब आप विश्वास के द्वारा जीते हैं, सो अब आपकी बारी है कि आप विश्वास करें। अगर आप पहले से ही विश्वासी हैं तो मैं आपको चुनौती देती हूँ कि आप और भी अधिक मजबूती से विश्वास करें उस सुसमाचार से जो आपके जीवन को बदल सकता है। उन सारे क्षेत्रों में जहाँ पर आपने ये कह दिया कि परमेश्वर नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आपने जैसा वो है वैसे स्वीकार कर लिया है और आपको लगता है कि जो भी आपकी परिस्थिति है परमेश्वर ने उसको सहने के लिए आपको शक्ति दी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बदलने की शक्ति दी गई है और आपको जयवंत होने के लिए बदलने की शक्ति दी है, सिर्फ सहन करने की शक्ति नहीं दी गई है। विश्वास करें, विश्वास करें, अपने ही विश्वास को चुनौती दें ताकि आप बड़े
चमत्कारों को अपने जीवन में देख सके कि आपका परमेश्वर बड़ा है और जो भी प्रॉब्लम, जो भी संकट आप सामना कर रहे हैं, उन सब का आप सामना कर सके, क्योंकि आपका परमेश्वर बड़ा है। यह आपका समय है। बहुत सारी गवाहियां हैं जो आपको बता सकी हूँ। कई ऐसे हैं जो ऊपरी कसर से भरे हुए लोग हैं और उनको आजादी मिली है, और बीमार लोग हैं जिनको चंगाई मिली है। ऐसे लोग हैं जिनकी एक जीवन शैली है, उनकी जीवन शैली बदल गई। ऐसे परिवार हैं जो परिवारों को वापस परमेश्वर की योजना में रिस्टोर किया गया है, बचाया गया है। ओ, मैं आपसे कहती हूँ मेरे दोस्त, उस सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ है। अब मैं आपको इजाजत दूंगी और आपके जो भी सेवकाई है उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगी, ताकि आप उन फैसलों को अच्छी तरीके से ले सके जो आज आपको बनाना है। परंतु परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि मैं आज आपसे बात करूं। आज के दिन उसे पता था आप सुनेंगे, उसे मालूम था कि उसके पास आपके लिए एक बहुत ही सुंदर संदेश है। वो आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि वो आपके जीवन में सबसे बीच का स्थान प्राप्त करे, ताकि आप दोबारा परमेश्वर में बने रहे, वापस आ जाए। जो कुछ भी आपका हक है उससे कम के लिए कभी भी राजी ना हो। परमेश्वर आपको आशीष दे, यीशु के नाम में। Thank you, Bishop Ladonna. What an incredible word we have just heard. Indeed, let us infuse his life with ours so that we can have peace and fulfill that divine destiny that he has for us. We have an intermission now, so I want to encourage you to digest what you have just heard. Let it sink in, and if you must make a decision, do it, absorb it, and seal it.